Today I am providing you the solutions of the questions I have given to you. In the first question, first of all we find the slope of AB, because in this question we have to prove that the given vertices are the vertices of right angle without using Pythagoras theorem. So we find the slope of the AB, that is m1, y2 minus 1 over x2 minus x1. We will get slope as -1. Then we find the slope of AC. We get the slope as m2 as 1. On multiplying m1 and m2 we get -1. It means that AB is perpendicular to AC, because if the product of slope is -1, then they are perpendicular to each other. It implies triangle ABC is a right angle triangle at A. Now if we take second question, we take the slope of AB as m1, it is 2/7, CD as 2/7. Since both slope of both AB and CD are equal, so lines are parallel, as we have to show in the second question that the lines are parallel to each other. Again in the question number 3, we have to find whether it is a vertices of the parallelogram or not. We find the slope of AB, it is 1/6. Slope of BC -3, slope of CD is 1/6 again. Slope of AD is -3. So we are seeing that slope of AB and CD are equal, and slope of BC and AD are equal. It means that AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So ABCD is a parallelogram. In the question number 4, we have to find the equation of the perpendicular bisector. Now given points are A and B, slope of AB becomes -2. Midpoint of AB becomes, by midpoint formula, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, that is -1/4. Now slope of perpendicular bisector m2 becomes -1 upon m1, because m1 m2 is equal to -1, so m2 becomes -1 upon m1, it becomes 1/2. The equation of perpendicular bisector of AB is given by slope is 1/2 and the point is -1/4. Placing the value here, we get x minus 2y plus 9 is equal to 0. Again in the question number 5, it is given to us that there is a line which is intersecting the both axes, and the segment between the line have midpoint as 2, 3. We have to find the equation of line. Now let us assume that the line cut x-axis at A0 and B at 0B. So midpoint is given by A plus 0.2, 0 plus B upon 2, but the midpoint is 2, 3. Comparing it, A upon 2 is equal to 2, B upon 2 is 3, so A is 4, B is 6. So equation of line in the intercept form, that is x upon A plus y upon B is equal to 1. Placing the value of A as 4 and B as 6, we get the equation as 3x plus 2y is equal to 12. Now question 6 is an interesting question. It is given to us, I have draw a rough figure for it. Any line which passes through point 1 minus 7, such that AP is equal to -4AP minus 3BP is equal to 0. ये गिवन है कि लाइन पॉइंट P से ये पास कर रही है और एक्सिस को A और B पे काट रही है. 4AP minus 3BP 0 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. ना 4AP is equal to 3BP and AP upon BP 3/4, तो रेशियो आ गई AP रेशियो BP 3:4. वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला हियर. माना कि एक्सिस पे जो लाइन काट रही है एक्सिस पे, दैट इज एट A0 एट B is 0B. So applying the section formula, coordinate of B mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, placing the value here. तो जो P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4a/7, 3b/7 है, बट गिवन है कि P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 और -7. ओके, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ A 7/4 और B की वैल्यू -49/3. द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्टिंग फॉर्म होती है x upon a plus y upon b is equal to 1, that is x upon 7/4 and y upon -49/3 is equal to 1. So it becomes 4x upon 7 minus 3y upon 49 is equal to 1. Solving it, so by this you get the equation of the line. अब 7th क्वेश्चन में कह रहे थे कि a line makes an angle of 150 degree with the y-axis in the positive direction. ठीक है, moreover perpendicular from origin to line is 7. अगर 150 एंगल यहाँ बन रहा है तो मैं यहाँ एंगल अल्फा निकालूंगा ताकि मैं इसकी नॉर्मल फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकूँ. तो मैं एंगल OBP कितना हो जाएगा 180 minus 150 30 लीनियर पेयर के हिसाब से. एंगल OPB, OP परपेंडिकुलर है तो OPB 90 डिग्री. एंगल BOP कितना आ गया 60. एंगल BOP 60, एंगल BOA पूरा 90 है, तो एंगल
पी ओ ए 30 डिग्री हो गया, यानी एंगल अल्फा कितना हो गया 30 हो गया। तो अब नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 7 cos 30 is root 3/2 and sin 30 is what? That is 1/2. So root 3x plus y is equal to 14. Now questions I have given you the another day, that the 5 questions I have given you. We have to find the distance of the point P23 along line x minus y plus 1 0. फिर डिस्टेंस निकालना है P का लाइन टू x माइनस 3y प्लस 9 से, और ये पॉइंट भी किसके लॉन्ग लाई कर रहा है x माइनस 2y प्लस x माइनस वाई प्लस 1 0 पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं x माइनस वाई प्लस 1 और 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का। सॉल्विंग इट वी गेट द वैल्यू x 6 एंड y 7। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट Q से जो दिखाया गया पॉइंट Q आ गया, दैट इज 6 एंड 7। अब डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P का इस लाइन से यानी Q से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्विंग we get 2 root 16. So question number 2, we have to find the coordinate of the foot of perpendicular from P1 minus 2 to the line y minus 2x plus 1 is equal to 0. तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं लाइन का। इसको स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज किया, y is equal to x minus 1, तो स्लोप कितना आ रहा है 2। तो PQ का स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर इसके, उसको m1 से डिनोट कर रहा हूँ, it becomes minus 1/2. Now PQ का स्लोप कितना है -1/2 and it passes through point 1 minus 2. So equation of line through P1 minus 2 perpendicular to given line is given by m1 is equal to y minus y1 upon x minus x1. Solving it we get the value x plus 2y plus 3 is equal to 0. अब PQ की इक्वेशन क्या दे रखी है, x plus 2y plus 3, और वैसे लाइन क्या है y minus 2x plus 1. सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो P है, Q है, तो Q कितना आ गया -1 माइनस Q माइनस 1 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है P से Q के ऊपर, जो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट A और B हमने मान लिए, हमें गिवन है, तो स्लोप निकाल लिया हमने। गिवन लाइन 4x प्लस 3y से y को स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका स्लोप आ गया। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। प्लेस किया इसको और A की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आ गई 18/5। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, हमें एक पॉइंट है x1 y1, हमने पॉइंट माना जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है और इसका डिस्टेंस इस लाइन से सेकंड लाइन से √5 है। तो पॉइंट x1 y1 माना और किस पर लाई कर रहा है, x प्लस वाई प्लस 3 0 पर, उसको सेटिस्फाई करेगा x प्लस 1 प्लस y1 प्लस 3 0। पहली क्वेश्चन बन गई। नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन x प्लस 2y प्लस 2 0, इसे इसका डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो हमने अप्लाई किया। डिस्टेंस हमें √5 दे रखा है, √5 आया नीचे, √5 से √5 5 हो गया। वी रिमूव द मॉड साइन, जब मॉड साइन रिमूव करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा +-5। सो टू इक्वेशन ऑफ फॉर्म x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज 5 और दूसरा x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज -5। तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो सॉल्व किया फर्स्ट और थर्ड को, दो आंसर्स आए -96 एंड 1 -4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो आ गए वो क्या आ गया हमारे पास -9√6 और 1 -4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 2 इज 0। दिया हुआ कि ये लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3x प्लस 4y प्लस 5 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज 0। पहले चेक करें तीनों लाइन्स पैरेलल है, तो मैंने इसका एक थोड़ी रफ सा बनाया फिगर यहाँ पर। पहली लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 दिखाई है, लास्ट 3x प्लस 4y माइनस 5, और इसके मिडल में कहीं पर, बिल्कुल बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में कहीं में दिखाई है 3x प्लस 4y प्लस 2 0। तो यहाँ पर A 3 है, B 4 है, हमने C1 एज्यूम कर लिया 5, C2 और C2 -5। तो हमें रेशियो निकालने की, जो सेंटर लाइन है किस रेशियो में इस डिस्टेंस को डिवाइड कर रही है, जो पहली और तीसरी लाइन है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन से और फिर थर्ड लाइन का सेकंड लाइन से। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x प्लस 4y प्लस 5 इज 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 2 0। यहाँ C1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/5 आ गया। ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, 3x प्लस 4y प्लस 2 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 0। सो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 7/5। पहले का आ रहा है 3/5, दूसरे का आ रहा है 7/5।
इसकी रेशियो निकालते हैं, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करनी है किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रही है दोनों लाइन्स के बीच के डिस्टेंस को. तो 3/5 रेशियो 7/5 गिव यू 3:7. So that's all are the solutions of the questions I have provided you. Check how many questions you have done correctly. Okay. Thank you.